So, why did you choose the UK and specifically the University of Liverpool? So okay, so there when I was shortlisting the universities, there was a lot of things. So as you know, I already have a 6+ years of experience. I did not want to do the MBA for 2 years because usually MBA is for 2 years. लेकिन of course जो भी आप सोचते हो वैसा होता नहीं है हर बार. So same with me और UK का weather I think सबको पता है it's very unpredictable. I also applied in just 1 or 1.5 month gap from my Okay. course. So yeah, they were very helpful. What would you say to students who are hesitant about studying abroad? So, hello and welcome back to another episode on our channel where we bring you real stories from real students who have successfully taken the leap to study abroad. So, I'm your host Swati Tiwari, as you all know, and today I'm thrilled to introduce someone truly inspiring. So, meet Sweta Sinha, a determined student from India who started her MBA journey at the University of Liverpool in January 2025. Sweta trusted us here at Grad Out for her admission and visa process, and today she is living her dream in the UK. In this episode, we will explore her story that how she navigated the application process, visa process, life in Liverpool, her MBA experience and her advice for all the future aspirants. So if you are thinking about doing your MBA abroad or just want to hear an honest student abroad journey, you are in the right place. So let's get started. Hello, Sweta. So please, can you tell us a little bit about your background and professional experience before applying for the MBA in UK? Yes. Hi, Swati. Thank you so much for having me here. So, I have done BTech in Electronics and Communication. And after that, I switched my career to digital marketing. So now I have a almost 6+ years of experience. And Okay. after that I always wanted to do MBA. So now that it was the time, so now I'm doing MBA from University of Liverpool. So this is like my educational background. Okay, that's great. So at what point did you decide that pursuing an MBA abroad was the right option or move for you? Okay, so I always wanted to do MBA, just waiting for the right time. But at that point of time, I just wanted to do, like every other Indian, you want to do it from IIM. So I was Yeah. also like, my plan was also doing the MBA from a top IIM university. I have appeared for GMAT and I really got a good marks. I have got 710 marks in GMAT. So after exploring the universities, I got to know like I can also apply abroad. And right now, in today's era, everything is connected globally. So I Yeah. really wanted to do that. I wanted to have that global exposure because even if Mhm. you're working in India, it doesn't matter. Everything is, international. So yeah, that's why I Right. decided why not doing something from abroad. Abroad, right. So why did you choose the UK and specifically the University of Liverpool? So okay, so there when I was shortlisting the universities, there was a lot of things. So I as you know, I already have a 6+ years of experience. I did not want to do the MBA for 2 years because usually MBA is for 2 years. So UK Right. gives you that one benefit that you can do your MBA just in 1 year, full-time MBA. And also UK, it's a very diverse market. So it also offers a rich academic environment. So yeah, Mhm. that's why I have finalized UK for. And University of Liverpool, it's now recently 2 days back we got to know that University of Liverpool is ranked 145 globally. Its QS Wow. ranking is 145, World ranking. and also its MBA ranking is also very high. So that's why I have selected University of Liverpool.
That's great. But if I ask, like, what are the main key things you considered, before selecting the universities? What Um, were those? so there are a lot of universities. So there was one more thing that I applied in the January intake. So there are also a Mhm. lot of universities which don't offer, their program in January. So that Okay. was one more thing. One more thing that I have Mm. selected University of Liverpool. And the second thing, I wanted to do something from a university which has a research background. So University of Liverpool is also a research-based university. So that is Okay. also one more thing. Okay. And how was your experience working with Grad Out for your admission process? It was very smooth, very nice. So I'm a very like research oriented person. So I do like a lot of research. That's It's great. very hard for me to like trust directly then and there. So Yeah. I had a lot of questions. I really disturbed the whole team like day night. I like instantly I used to have a question. I just text them, but they were very helpful. Even if I'm like texting them in the night, they used to reply. Even if Yeah. they don't have the answers then and there, they instantly schedule a call with the right team and they'll say, okay, for your questions, tomorrow, arranging this call with you. And yeah, it Hmm. was very smooth process because people think that admission is like what you just apply, you'll get a result and you get admission. It's really not. It's very overwhelming, especially you are applying for some university which is not in India, outside India. So international Yes. university, it's all glitters from outside, but it is not. This is what I got to know, and it was very helpful for me because I also applied in just 1 or 1.5 month gap from my Okay. course. So yeah, they were very helpful. They like figured it out everything for Mhm. me. So good to hear that from you. Well, if I talk about the challenges, were there any challenges you faced during your application or documentation, and how did you overcome them? There were challenges, of course. As I have mentioned, that it's not easy. It's not that there is Easy. like straightforward just that you just go and you just apply. You have to research a lot. You have to even make sure that everything is real because you are hearing a lot of scam is also happening. Right. So it is very important to like check the authenticity of each and every link, the website, the Hmm. date, and everything. So there were challenges, but of course, because GradOut was there with me, so even if I used to have any question, I just directly reach out to them and they just help me out. So they helped me. So yeah. Right. Okay, so did you apply to other universities as well, or was Liverpool your top choice from the beginning? I have applied to other universities. Also not just in UK, I have applied in Ireland as well. But Okay. of course, University of Liverpool was my top choice. I really wanted that I get an offer from them. But for a safe side, I Hmm. have applied from other universities as well. They were also very good universities. But according, like I have shortlisted, the University of Liverpool was fitting in my criteria. That was the thing. So although I have got offers from others as well, and I and the University of Liverpool was the only one who released their result at the very last moment, and I have a lot Okay. of offers before that. So that Oh, is also wow. very, so that's why it's not, you have a lot of patience. Right, right. Okay, so can you walk us through your visa experience? Was the process smooth? It was very smooth because I was connected to a lot of people through LinkedIn as well, who was Okay. already went to the journey. I had a friend who did um their, her MBA from USA actually. So after listening a lot of stories, uh, everyone's everyone's shared their experience, visa experience, Hmm. and I have also connected with other university students as well, not just MBA, whoever like जो भी masters कर रहा था बाहर से. So everybody told me like कि क्या क्या चीजें होती हैं. There are scams as well in visa process also, Mhm. and Mhm. also even like you can get rejected and all a lot of things. So I Right. have heard all those stories. I was very scared. Mhm. So but आफ्टर लाइक ग्रेड आउट के जब उन्होंने मुझे बताया कि वीज़ा प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं,
बहुत सारी चीज़ें मुझे उनसे भी पता चली, लाइक जैसे you can get visa in 5 days, even like normal processes of 3 weeks, you can get it in one day as well. So वो सारी चीज़ें भी मुझे नहीं पता थी. So for me, visa process was so smooth, like it was smoothest actually. Apart from all the process, visa wala, All the steps, yeah. yeah, because Rashmi helped me a lot. She just told me like beforehand. Not just she shared the list of the documents I should collect, but also after collecting those, she fixed the interview with me. पूरा check किया एक एक करके कि okay, do you have this or not? Do you have this or not? और अगर जो भी miss था, Right, that also she checked. Like she just didn't left it with me. Like she's like okay, जब ये आ जाएगा, again we'll connect and again we'll check it. So वो सारा right. एक दिन पहले she did it with me, and कुछ भी नहीं, it was just so smooth. I just went there, I submitted my documents, everything was, they checked it, they were like सब ठीक है. Just 10 minutes, and yeah, and I also received my visa in like I think 5 days, even though I have applied for normal like 3 weeks visa. But Okay, I just, because when your documents are like fine, I think it's very easy, like you'll get it easy. in, yeah. Because I was about to ask that how long did it take for you to get your visa approved? But there you say just 5 days, which Yeah, is around 5 days. more than Although overwhelming. थोड़ा वीजा के उधर से थोड़ा सा कुछ इशू आता, because VFS, this is how they are, UK. Right. So yeah, issue in not really like कुछ वीजा का इशू था. मेरा वीजा पहले आ गया था एंड रिजल्ट उन्होंने मुझे बाद में बताया था. I was like okay, it Okay. doesn't matter. Yes, So right, yeah. right. Because how did Gradout support you during the critical stage? Um, Always like वो पूरा always मतलब साथ में थे. They were never be like कि okay, we are only working 9 to 5. उन्होंने Hmm. मुझे कोई ऐसे टाइमलाइन नहीं दिया था कि okay श्वेता, if you have any हाँ. questions तो हम 9 to 5 में तुम मुझे you can connect with me. नहीं, I have a Hmm. dedicated person. तो मैं डायरेक्टली उनको रीच आउट करती थी कभी भी, इवन लाइक ऑल्दो यू शुड नॉट डू इट कि किसी को लेट नाइट मैसेज नहीं करना चाहिए या वो, दैट शुड ऑल्सो बी देयर. बट इवन इफ लाइक अगर मैंने लाइक यू कैन से दैट जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होता है उसके अपार्ट फ्रॉम भी मैंने अगर किया है, 8 बजे बाहर. 9 बजे भी मैंने किया है, तो वो मुझे रिप्लाई करती थी और मुझे बोलती थी कि श्वेता मैं ये कल आपको चेक करके बता दूंगी. तो क्योंकि ये Sure. बहुत ही वैसा ओवरवेलमिंग प्रोसेस है, लाइक यू Right. जस्ट फील लॉस्ट, मतलब काफी समझ में नहीं आता है कि अब क्या होगा. यू जस्ट, इवन दो लाइक इट लुक्स लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि It is आपको not. आपको लगता है कि अच्छा ये तो मैंने किसी और से सुना ही नहीं था, ये मेरे साथ एक नया कुछ आ गया है, अब इसको कैसे हैंडल करना है. Right. सो ऑल दोज क्वेश्चंस में मैं बहुत जल्दी मतलब क्योंकि ये बहुत ही ऐसा प्रोसेस है कि अगर एक आपका चला गया देन आपको नेक्स्ट इनटेक के लिए वेट करना पड़ेगा. सो मेरे को Okay, वो yeah. चांस नहीं छोड़ना था. प्लस मेरी ऐसे ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, तो वो भी एक था कि मुझे करना ही है Right. समहाउ इसी में ही. So I was very like कि अब क्या करूँ all the time, and then she's always like it's okay, कुछ भी नहीं है, हम अपनी टीम से बात करेंगे, ये हो जाएगा, ऐसा होता है एंड ऑल. तो एवरी टाइम मुझे ऐसे शांत करवाया गया है टीम के थ्रू. Right. सो बहुत ही, मुझे तो बहुत ही हेल्पफुल लगा था. मुझे आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत जल्दी पैनिक करके कर जा रही थी हर सिचुएशन में. एंड आई Hmm. थिंक जब मैंने सब लोगों से बात, कोई इस बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पर व्हेन यू डायरेक्टली टॉक टू देम, स्पेशली इफ दे आर योर फ्रेंड्स और आप पर्सनली जानते हो, देन Yeah. दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस कि यस इट इज अ वेरी ओवरवेलमिंग प्रोसेस. बट ऐसे इफ यू विल टॉक टू देम, दे विल नॉट टेल यू कि ये कितना है. दिल से हाँ हमने अप्लाई किया था Right. और ये होता है, मेहनत करनी पड़ती है, बट दैट्स इट. बट एक्चुअल जो Yeah. चैलेंज है, इट्स वेरी डिफरेंट. लाइक अगर मतलब आप अकेले Right. कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स इफ देयर इज समवन जो ऑलरेडी इस प्रोसेस से जा चुका है, प्लस समवन जिसको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, दे नो कि Experience. क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प की है, तो दे आर अवेयर ऑफ Hmm. ईच एंड एवरी Every चैलेंजेस. step. क्योंकि Yeah. आपका चैलेंज अलग होगा, किसी और का अलग हो सकता है. तो आपके फ्रेंड आपको वो Right. सारे Right. चैलेंजेस नहीं बता सकते, पर जैसे आपने ग्रेड आउट में इतने सारे स्टूडेंट्स का करवाया है, सो दे आर अवेयर ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस, एंड तो वो Stages, बता सकते हैं challenges. कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, सो हम पहले से ही
सेफ्टी लेके चलते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी टाइम पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है, एंड देन उस चीज़ को ठीक करने में एक्चुअली बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है Hmm. कि यू कैन नॉट डू इट, यू कैन डू इट, बट द मोमेंट यू Right. फिगर इट आउट, यू डू योर रिसर्च, यू हैव टू कॉन्टैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, वो सब में टाइम लगेगा। मे बी आपके पास Lot उतना of टाइम time will नहीं be हो। wasted. हाँ, हो सकता है आपके पास Yeah. उतना टाइम नहीं हो, आपके पास डेडलाइन हो सिर्फ 2 दिन की, आपको ये शायद 2 दिन में ही Hmm. करना हो। सो ये सारे प्रोसेस काफ़ी मतलब ईजिली हो जाते हैं, मतलब बहुत ही Hmm. लाइक तुरंत अगर किसी को पता है, दे शील टेल यू कि ऐसे ऐसे कर लो, एंड बस। Yes, that तो was so mindful of you, and that's why you made it within the time being, and I'm so glad to hear that. And if I ask, how was your arrival in the UK? Was Liverpool what you expected? To be honest, I don't know. There was nothing to, I mean, there was a lot of things because, uh, the things you watch on movies, लोगों का सुन के, so Hmm. there is some image in your mind, but exactly Yeah, आपको नहीं पता होता है, you will just still think कि क्या ये वैसा वाला experience होगा, या क्या ये ऐसा वाला experience होगा, या कैसा होगा। So there right. was a lot of thing जो होता है, लेकिन of course जो भी आप सोचते हो वैसा होता नहीं है हर बार। So same with Hmm. me और यूके का वेदर, आई थिंक सबको पता है, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो Unpredictable. हाँ, मैं जिस दिन लैंड हुई थी उसी दिन काफ़ी विंड गस्ट का कुछ था। सो काफ़ी हवा चल रही थी, बट जो चीज़ हम सुनते हैं कि हाँ, ऐसा सुंदर होगा, और Hmm. डायरेक्ट है, मतलब चीज़ें ट्रांस मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि कैसे जाना है, क्या करना है, समझना है, कुछ नहीं, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप खुद भी किसी से पूछोगे या नहीं भी पूछोगे, सो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सारी चीज़ें बहुत वैसे है, Hmm. मेंशन है एवरीवेयर। और मुझे आई डोंट नो अबाउट अदर्स, पर मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आई रियली फाउंड सो मेनी हेल्पिंग पीपल ओवर देयर। आई वाज कैरिंग 40 Hmm. केजी का लगेज विद दैट विंड, बट और वो भी स्टेयरकेस पे चढ़ना था, लिफ्ट नहीं थी, क्योंकि मैंने ट्रेन लिया था आने के लिए। तो Hmm. बट मतलब आई फाउंड पीपल, उन्होंने मुझे मेरी काफ़ी हेल्प की, उन्होंने मेरे 40 केजी के बैग उठाया। सो मेरा Wow, एक्सपीरियंस so तो sweet. हाँ, काफ़ी मतलब अच्छा रहा। और ऑफ कोर्स मतलब मैंने पहले भी चीज़ें ग्रैड आउट से पूछ रखी थी, तो उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि कैसे कैसे क्या करना है, ये ऑप्शंस How हैं, it will gonna अगर be. आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है आप ऐसे ऐसे जा सकते हो। सो हाँ, मतलब वही पहले से इफ यू आर प्रिपेयर्ड, सो इट्स ऑलवेज Hmm. इजी। Yeah, so but still there were challenges you're gonna see, right? So Yeah, what were that's your I think that's initial? our unforeseen challenges. You don't know. Yes, You can have those even in India as well. So yeah. exactly. So what were your initial challenges during your first few weeks in the UK, like housing, weather, culture, food, and whatnot? Uh, बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बिकॉज़ आई वाज़ अगेन लिटिल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। Prepared. हाँ, हाउस का क्योंकि पहले ही आई हैव बुक्ड माय अकोमोडेशन, एंड आई विल सजेस्ट ईच एंड एवरीवन कि यू डू एवरीथिंग बिफोरहैंड, बिकॉज़ इवन स्पेशली बिकॉज़ मैं जनवरी में आ रही थी, सो देयर वाज़ वेरी लेस अकोमोडेशन Mhm. अवेलेबल। एंड इवन इफ इन सितंबर इनटेक, आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से ही कर लो, बिकॉज़ सितंबर इनटेक इज़ द बिगेस्ट इनटेक। यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे बच्चे उसी इनटेक में आते हैं, तो सब पहले ही बुक कर देते हैं, एंड यू विल गेट द अकोमोडेशन, ऐसा नहीं है, बट इट मे नॉट बी इन योर बजट। तो बहुत ज़्यादा, Right, एंड प्लस आपकी यूनिवर्सिटी के ऑफ कोर्स आप चाहोगे कि आपकी यूनिवर्सिटी के पास ही हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत महँगा है। कैब, बस इज़ फाइन, right. बट Mhm. कैब बहुत महँगी है, आपको मोस्टली चलना ही पड़ता है यहाँ पे। सो ऑफ कोर्स आप यहाँ पढ़ने आए हो, तो यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम इन ट्रांसपोर्टेशन, राइट? सॉरी, स्पेशली इन कम्यूट, कि आधा घंटा आने में Yeah. लग रहा है, आधा घंटा जाने में लग रहा है, 1 घंटा आपका आने-जाने में ही वेस्ट हो गया। सो यू Mhm. विल वांट कि आपका अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी से 5 या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स दूर हो। सो Right. फिर देन आपका बजट उस हिसाब से वेरी भी करेगा। जो यूनिवर्सिटी के पास होंगी वो मे बी थोड़ी-सी कॉस्टली हों, बट अगर आपने सही टाइम पे Mhm. अकोमोडेशन लिया, देन मे बी यू विल फाइंड इन योर बजट। सो मैं पहले ही करके गई थी, और Okay. मुझे अकोमोडेशन के लिए भी मुझे ग्रैड आउट ने हेल्प किया था। उन्होंने भी मुझे काफ़ी लोगों से मतलब कनेक्ट कराया था कि ये हमारा अकोमोडेशन का भी करते हाँ. हैं। सो मुझे मेरे बजट में काफ़ी अच्छा मिल गया था। मुझे अराउंड 100 पर वीक चाहिए था, तो मुझे मिल गया था मेरे Okay. बजट में। आई एम स्टिल देयर। और
तो मुझे ऐसे उसमें कुछ नहीं आया, खाने-पीने का भी ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे इंडियन ग्रोसरीज़ वगैरह हैं थोड़ा बहुत, तो आप वहाँ पे जाके हाँ, आपको थोड़ा-सा ये शुरू में होगा कि आपको पता नहीं है कि कहाँ पे सस्ता मिलता है, कहाँ पे महँगा मिलता है, सो दैट यू विल इवेंचुअली लर्न आफ्टर विजिटिंग ईच एंड एवरी सुपरमार्केट। तो वो चीज़ है, बट आई ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू माई अदर एमबीए पीपल, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प की थी। हम्म, मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से सामान ले सकते हैं, यहाँ से सामान ले सकते हैं। सो हम्म, ये सारा था, एंड शुरू में आपको सेटल होने में मुझे लगता है कि अराउंड 1 मंथ लग जाएगा, स्पेशली लग स्टार्टिंग जाएगा। के 1 और 2 वीक्स, बिकॉज आपको जीबी के लिए फाइल करना होता है, आपको बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, आपको एनआई नंबर, अगर आपको मतलब पार्ट टाइम करना है तो एनआई नंबर के लिए भी अप्लाई करना हाँ, होता है। तो वो सारी चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर आपके क्लासेस भी राइट। शुरू हो जाते हैं, आप स्टिल इतने टाइम के बाद, स्पेशली एमबीए जो कर रहे होते हम्म। हैं, उन इतनी हमें हैबिट नहीं होती फिर से पढ़ने की। तो सुबह उठ के फिर से यूनिवर्सिटी राइट। जाना, पढ़ना, वो सब। तो शुरू में थोड़ा-सा ओवरवेलमिंग तो मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ आई थिंक ओवरवेलमिंग तो नहीं है बहुत ये प्रोसेस। इट्स जस्ट कि काफ़ी चीज़ें आपको करनी रहेंगी। तो आपको पता हाँ, रहेगा कि क्या-क्या करना है, इट्स जस्ट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आप बिज़ी रहोगे बहुत ज़्यादा। टाइम। एंड ऑफ कोर्स होम सिकनेस तो रहती है शुरू के कुछ दिनों पे। हाँ, फिर इवेंचुअली ट्रू यू विल ट्रू। मेक फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स होंगे, तो धीरे-धीरे चीज़ें हम्म। हो जाती हैं। बट यस। ऐसा थोड़ा-सा मतलब आपको शुरू में सेट होने में तो काफ़ी कुछ करना पड़ेगा बेसिकली। Time. Yes. Okay, so did the university provide any onboarding or welcome sessions for Yes. international students? यस, सो Oh, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के साइड से दे हैव कनेक्टेड ईच एंड एवरीवन कि आप कौन से डे को यहाँ पे लैंड हो रहे हो, और जो okay. उस हिसाब से वो एक कैब फैसिलिटी देते हैं यहाँ पे। सो एंड दे आल्सो सेंड देयर एम्बेसडर्स टू, लाइक अगर Oh, आपको मतलब यूनिवर्सिटी वाला नहीं लेना है तो आप और कौन से ले सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, कैब से जा सकते हो, कहाँ जा सकते हो, hmm. कैसे-कैसे क्या बुक कर सकते हो, तो द एम्बेसडर्स आर आल्सो देयर। जैसे कि जनवरी इनटेक में उन्होंने 1 या 2 दिन के लिए ये प्रोवाइड किया था। सो अगर कोई स्टूडेंट उस डेट पे नहीं आ रहा है और बाद में आ रहा है, स्टिल द एम्बेसडर्स वर देयर टू गाइड देम। तो या यूनिवर्सिटी की तरफ से कैब मिलती है, बट इट्स नॉट, इट्स फॉर द मेन डे जिस दिन सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। आई थिंक इट्स फॉर देम, Students are. बिकॉज हर किसी का अपना अपना अलग डे भी हो सकता है आगे पीछे। सो Hmm. या Okay. So can you tell us about your MBA curriculum? Like, what are your favorite subjects or modules? सो अभी रिसेंटली हमारा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ है। Hmm. सो नए अभी इस सेमेस्टर में पुराने सेमेस्टर में देयर वाज अ लॉट ऑफ नाइस, बिकॉज मेरा मार्केटिंग बैकग्राउंड है, तो ऑफ कोर्स मुझे Hmm. मार्केटिंग वाले सब्जेक्ट्स ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। आई रियली लाइक देम, बट द समथिंग न्यू विच आई हैव लर्न एंड आई रियली लाइक्ड इट वाज इंटरनेशनल बिजनेस मॉड्यूल, Hmm. आईबी। काफ़ी कुछ उसमें सीखने को मिला, बहुत ही अच्छा था। और हमारी जो प्रोफ़ेसर थी, शी वाज़ ऑल्सो वेरी नाइस। काफ़ी जो पढ़ाने का तरीका है, इट्स नॉट जस्ट लाइक स्लाइड्स खोल दिए एंड देन शी इज़ टेलिंग एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन था, और स्टार्ट सुबह हमारा सेशन होता था, और लंच के बाद हमारा सेमिनार होता था, तो सेमिनार में हमारी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती थी। सो आई हैव फाउंड ग्रुप एक्टिविटीज बहुत ही मतलब आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने जो भी सुबह Hmm. पढ़ा है, आपको वो ऐसे सिनेरियोज देते थे कि अगर आप आगे चल के, लेट्स सपोज यू आर अ मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, अब आपको ये चीज़ें, तो हम वो जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, वी एक्चुअली सिट टुगेदर इन अ टीम। हमारे 2 या 3 का ग्रुप बनाते थे, और वी यूज्ड टू ब्रेनस्टॉर्म, और हम वो चीज़ें करते थे, तो हमें एक्चुअल में ऐसे रियल वर्ल्ड में चीज़ें कैसी होती है वो भी हमने साथ साथ में की Okay. है। तो हाँ, इट्स नॉट हाँ. जस्ट कि आप बस क्लासेस में वो आपको कुछ थ्योरी पढ़ा रहे हैं एंड दैट्स इट, इट्स Hmm. नॉट लाइक दैट। तो दिस वाज देयर, एंड या यही मेरे को आईबी अच्छा लगा था, और मेरे मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स आई एम रियली एंजॉयिंग इट। और अभी सेकंड Okay. शुरू हुआ है, तो So, लेट्स सी यहाँ पे भी कुछ मिलता है। बाकी सारे मॉड्यूल्स बहुत अच्छे, मतलब एवरीथिंग इज लाइक आपको नया बहुत सीखने को मिल रहा है, एंड देन एवरी मॉड्यूल यू विल बी लाइक, शुड आई चेंज माय करियर टू दिस, शुड आई बी कंसल्टेंट नाउ, शुड आई बी एचआर नाउ। तो वो है। okay. So along way, told us that how unique or diversified their teaching experience and Yes. techniques are, Yes. that students are so indulged into it and have the real world experience, Yes. which is
which is absolutely wonderful and everyone should have it. एंड ये सो दिस इज व्हाई आई वांटेड टू डू, जब आपने मुझसे पूछा, क्योंकि आपके क्लासरूम में डाइवर्स जब Hmm. स्टूडेंट्स होते हैं, तो देन ऑल्सो यू लर्न अ लॉट फ्रॉम डिफरेंट कल्चर कि Right. अच्छा वहाँ पे ऐसे होता है, अच्छा यहाँ पे ऐसे होता है, एंड देन यू विल गेट टू नो कि ओके वाओ दिस इज, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है सोचने का. सो दैट Hmm. वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि अरे कल क्लास जाना है और इट्स वेरी बोरिंग, नींद Right. आ रही है. पूरा you just interact with your module leaders and then Hmm. your classmates. काफी अच्छा experience Yeah, so as you said that how diverse is your class, you है. said about like what's it like studying with peers from around the world? इट्स वेरी नाइस. मतलब मैंने बहुत सीखा है. मुझे लगा था कि ओके ऑफ कोर्स आई एम गोना लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मुझे उससे ज़्यादा सीखने को मिला. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हाउ थिंग्स like on a career perspective, but apart from Hmm. that as well, like कि बाकी दूसरे कंट्रीज में चीज़ें कैसे होती है. मतलब अगर मैं यूके में पढ़ रही हूँ तो मुझे यूके का ही एक्सपोजर नहीं मिला है. नाउ आई नो कि अच्छा जापान में ऐसे पढ़ाई होती है और मलेशिया में ऐसे पढ़ाई होती है. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट Uh-huh. पढ़ाई. द जैसे हर किसी का अपना चीज़ें सीखने का भी एक एक्सपीरियंस होता है, एक तरीका होता है. लाइक Hmm. कि ठीक है, इंडिया में जैसे ऐसे पढ़ाते हैं तो हम ऐसे लर्न करते थे, बट वहाँ से भी मैंने कई ट्रिक्स सीखे हैं कि अच्छा ये लोग ऐसे चीज़ें जल्दी लर्न कर लेते हैं और ऐसे करते हैं. असाइनमेंट्स Uh-huh. इंडिया में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड असाइनमेंट है, और ओ माय गॉड, मतलब मुझे काफ़ी असाइनमेंट में थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत चैलेंज हुआ था. चैलेंज क्या, थोड़ा सा डर था, क्योंकि इट्स नॉट सीधे कि क्वेश्चन दिया एंड बुक से आपने पढ़ाई की Like they. एंड बुक से आपने पढ़ाई की एंड वहीं से देख के आंसर्स लिख लिए. नो, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल. Hmm. बहुत ही डिफरेंट होता है यहाँ पे असाइनमेंट. तो थैंकफुली हमारे पास जैन इनटेक सॉरी सितंबर इनटेक का सपोर्ट था. जो सब तो हमारी क्लासेस सितंबर के साथ एक साथ हुई थी, तो उन लोगों Hmm. ने काफ़ी हेल्प की थी हमारी. Okay. तो कि असाइनमेंट कैसे करना है एंड ऑल. तो यस, पीयर्स का असाइनमेंट में भी बहुत हेल्प रहा था कि बिकॉज इट वाज अ फर्स्ट असाइनमेंट और वो ऑलरेडी इस चीज़ से निकल चुके थे. तो उन लोगों ने काफ़ी हेल्प की थी हम लोगों के असाइनमेंट में, बिकॉज हम तो बहुत डरे हुए थे कि, और यहाँ पे आपको 90 लाना इज अ ड्रीम. 60 इज equivalent to 90 here. Not 90, Oh, I would say no. 80. So if you're getting 60, that's a merit. एंड इफ यू आर गेटिंग Okay. 70, दैट्स अ डिस्टिंक्शन. और अगर आपने 80 और 90 लिया देन यू आर लाइक सुपर स्मार्ट. सो Right, right. यहाँ पे 70 लेके आना इज वेरी वेरी लाइक वेरी गुड. तो वो भी एक चीज़ Yes. थी कि आप इंडिया में 90 मार्क्स लेके आ रहे हो, बट अगर आप सेम सेम चीज़ें यहाँ पे कर रहे हो देन आपको यहाँ पे 70 आएगा. और 80 तो अगर आप ले आए हो देन आप, आई थिंक आपने मास्टर कर लिया है उसमें, तो उस Yeah, सब्जेक्ट में. right, right. Okay, are there networking opportunities or industry sessions also as part of your course? यस. सो अभी देवर 2-3 इंडस्ट्री. I think one happened and the Visits. rest will happen in like in coming days. तो वो अभी Mm-hmm. हमारा पेंडिंग है. बट या फ्रॉम द Okay. सितंबर इनटेक आई हैव हर्ड देयर वर सो मेनी इंडस्ट्री सेशन हैपन, द टूर हैपन. सो Hmm. एक जैगवार की कंपनी के साथ था. देयर इज अ वन एनफील्ड, यहाँ पे रेस Okay. कोर्स है, वहाँ भी लेके गए थे. देन दे ऑल्सो वेंट टू मेड्रिड फॉर 1 वीक. तो Mm-hmm. मैड्रिड का सेशन भी का ट्रिप भी हुआ था फॉर 1 वीक. एंड देयर वाज वन मोर, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर ऑल दिस हैपन एज अ इंडस्ट्री लेवल. एंड बाकी एलुमनाई मीट का नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा काफ़ी होता रहता है. वी ऑल्सो हैव वन मोर इन 24th, तो वो भी अभी होने वाला है, नेटवर्किंग. Wow. एंड हम देयर वाज वन मोर नेटवर्किंग थिंग हैपन. इट वाज नॉर्थ MBA 2025. सो Okay. उसमें नॉर्थ की 5 टॉप यूनिवर्सिटीज़ के MBAs एक साथ मिले थे. सो इट वाज यूनिवर्सिटी Okay. ऑफ न्यू कैसल, बर्मिंगम एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल. देयर वाज 2 मोर यूनिवर्सिटीज. सो ये 5 यूनिवर्सिटीज़ के MBA वहाँ पे आए थे. एंड Hmm. वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हुई थी. काफ़ी कुछ जो
क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब एक्चुअली में जो वहाँ पे कंपनीज होती है, व्हाट एग्जैक्टली दे आर लुकिंग फॉर, व्हाट द एचआर इज लुकिंग इन देयर रेज्यूमे, द एलुमनाई इज देयर, दे ऑल्सो शेयर देयर हम्म। कि क्या क्या करना है। तो इस तरीके के बहुत सारे सेशंस यहाँ पे होते रहते हैं एलुमनाई होते वाले। रहते हैं। Yes, there are a lot of events. Sometimes you will find कि you don't have time to go to those events and connect with each and everyone. There वाह। are so many resources to learn. So ये सब चीज़ की कमी नहीं है, इट्स जस्ट आपके पास टाइम की कमी हो जाएगी यहाँ पे आने के बाद कि you will feel कि wow there are so many things to do but I don't have to राइट। time to go each and every, so that's why when you have to sit and you have to actually think फिगर कि आउट व्हाट विल बी द बेस्ट फॉर यू। बेस्ट गेस कहाँ पे जाना है, कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करना। हम्म। That's great. And have you started looking at part-time jobs, internships, or work opportunities post MBA? Yes, I did, बट मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया था बिकॉज ऑफ कोर्स इट वाज, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं आपके पास। तो हम्म। पार्ट टाइम के लिए आई हैव हर्ड कि इतना इजी नहीं होता है, विच इज़ ट्रू। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी मिल गया था, इट वाज लाइक वेरी क्विक। हम्म। नहीं था, और मैं एक्टिवली बहुत ऐसे एक साथ बैठ के मैंने बहुत ज़्यादा किया भी नहीं था कि एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे और रोज़ 10-20 जगह अप्लाई कर रहे हैं। Right. आई डेंट डू दैट, बट मैंने थोड़ा बहुत किया था, लाइक मैं अपना रिज्यूमे लेके आई गो टू शॉप्स सारे फिजिकली, और फिर मैं वहाँ जाके मैंने पूछा था कि क्या आपके पास वैकेंसी है, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, पार्ट टाइम जॉब एंड ऑल। सो वहाँ पे 1-2 मिले थे, पर इट डिडंट क्लिक, मतलब वो तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी बिकॉज एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यू कैन ओनली वर्क फॉर 20 आवर्स पर वीक, तो दे वांटेड मोर। तो वैसे तो मुझे नहीं मिला था, बट दैट इज़ वन मोर थिंग आई वुड सजेस्ट एवरीवन, अगर वो पार्ट टाइम ढूंढ रहे हैं, आप ऐसे अलग होके कर सकते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ हम्म। जाएंगे। प्लस यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप उनके डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके। सो मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई ऑनलाइन नहीं किया था, आई थिंक मैंने 10 या 12 शायद अप्लाई किया था, और मैं और हम्म। करना चाहती थी, बट बिफोर दैट मुझे एक यहाँ पे LFC You secured one. लिवरपूल फुटबॉल क्लब का था, तो उनका एक पार्ट टाइम था, तो वहाँ पे मुझे इंटरव्यू आया एंड मैंने वहाँ पे इंटरव्यू Okay. दिया एंड देन वहाँ पे हो गया था। एक और जो एंट्री रेस कोर्स वाला था, दैट वाज आल्सो देयर। तो हम्म। so you have to like talk to people, you'll get to know कि क्या Yeah. क्या आ रहा है। sometimes it's not just कि you only applying it, यहाँ पे रेफरल भी काफ़ी Right. काम करता है। if somebody already working, आप हो सकता है आप उनके वेबसाइट पे जाओ, बट अगर उसने, अब वो अपने डायरेक्टली मैनेजर से बात करेगा कि आई हैव दिस फ्रेंड, और अगर वैकेंसी है तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट टॉक, हम्म। लाइक कनेक्ट विद द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग, जिनके पास ऑलरेडी पार्ट टाइम हम्म। है, तो वो रेफरल अगर आपको देंगे तो आपका होने का ज़्यादा चांसेस है। और Okay, so beside the questionnaire, I want to know about the experience. As you said that you just took your resume and went to place asking for हाँ, vacancies. How did it feel? Because India में it's like a taboo कि आप ऐसे जा जाके वो कर रहे हो cafes पे and all. या So how did it feel? बिल्कुल भी इंडिया जैसा एक्सपीरियंस नहीं था। लाइक इवन इफ योर सेल्फ यू फील लाइक थोड़ा सा लाइक छोटा, या फिर लाइक अशेम्ड और समथिंग लाइक दैट, बट ऐसा Hmm. बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल, एवरीबडी इज डूइंग इट, इट्स नॉट जस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट, इवन द Yeah. लोकल पीपल आर डूइंग इट बिकॉज इट्स बेसिक कि यहाँ पे 18 ईयर्स के बाद, 18 ईयर्स, इवन यहाँ पे लोग 18 ईयर्स से पहले भी जॉब कर रहे हैं एंड दे आर एलिजिबल टू वर्क, Right. उनके अलग राइट्स हैं यहाँ Wow. पे ऑफ कोर्स। बट यहाँ पे सब लाइक एवरीबडी वांट्स पॉकेट मनी, तो ये बहुत ही कॉमन है। एंड Hmm. अगर आप जा रहे हो, दे इवन हेल्प मी, लाइक कि अगर किसी शॉप में मैं गई और मैंने उनसे बोला कि मैं पार्ट टाइम ढूंढ रही हूँ, सो अगर उनके पास पार्ट टाइम नहीं था, पर अगर उनको पता था कि नेक्स्ट शॉप में शायद वो ढूंढ रहे हैं, तो दे इवन सजेस्टेड मी कि आप वहाँ Oh, चले जाओ, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो पीपल आर वेरी हेल्पिंग, nice. और बहुत ही हेल्पफुल रहता है, और बिल्कुल भी कोई वैसा टैबू नहीं है, यहाँ पे हर जॉब को बहुत इक्वली मानते Hmm. हैं। और Wow. यहाँ पे बिहेवियर, वही जो कल्चर है, मतलब बहुत मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे, Hmm. स्पेशली जो यहाँ के लोकल शॉप्स वगैरह हैं। सो दे वर वेरी हेल्पफुल, वो Right. उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की कि अगर उनके पास नहीं है, दे सेड कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, बिकॉज समटाइम्स वहाँ जो काम कर रहे हैं जिनसे आपने पूछा है, वो भी एक पार्ट टाइमर ही है, तो Hmm. दे नो द स्ट्रगल, तो दे विल ऑल्सो हेल्प Yeah. यू कि इट्स ओके, और आपको अपने इंडिया के लोग भी मिल जाएंगे, तो दे विल ऑल्सो हेल्प यू बिकॉज दे नो कि अरे अपने लोग हैं, हमने भी इतना स्ट्रगल किया, सो लेट्स हेल्प Hmm. देम, आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर एज वेल। तो उस Right. सेंस में कोई स्ट्रगल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, कोई ऐसा नहीं था। आप
शुरू में आपके साइड से हो सकता है, बट वंस यू गो देयर एंड यू स्टार्ट डूइंग इट, यू फील कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था, आई मीन इट वाज जस्ट इन माय हेड। और बस Nice. वो जो आपका टाइम लगता है, दैट इज जस्ट देयर, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। Hmm. Nice, nice. Very great. And what would you say to students who are hesitant about studying abroad? I would say if you really want to come out of your comfort zone, or you really want to Hmm. like grow and learn something, I should you come here. You should come here because Hmm. so I'm although a like little introvert side kind of person, not 100%, but yeah, somewhat. For me, solo trip was a big no-no. मुझे लगता था लोग कैसे कर लेते हैं solo trip. This is something I can't do Hmm. because so trip means enjoyment, and you can only do that with your friends, right? तो Right. मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता था कि लोग सोलो ट्रिप कर कैसे लेते हैं, मतलब क्या मजा मिलता है उनको। एंड कहीं पे अकेले चीजें इंडिया में भी की हैं और करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बट देर इज अ डिफरेंस। बहुत डिफरेंस है यहाँ पे आके। समटाइम्स यू योर सेल्फ वॉन्ट टू डू इट अलोन, मतलब बहुत अच्छा है, यू जस्ट रियली वॉन्ट टू लाइक निकल जाओ बाहर, जस्ट गो। Be या yourself. जस्ट गो, आपको ऐसे नहीं होगा कि अरे आज शाम को उस गार्डन में जाना है तो मैं अपने दोस्तों से पूछ लूँ, सम यू जस्ट डोंट फील इट। बहुत मतलब मैंने अपने अंदर बहुत चेंजेस नोटिस किए हैं यहाँ आने के बाद, वैसे चेंजेस जो मैंने अपने आप को पुश नहीं किए थे। मतलब समटाइम्स यू पुश योर सेल्फ टू Hmm. ग्रो, कि नहीं नहीं मुझे Right. तो हेजिटेंट मैं हूँ, तो आई शुड डू इट, आई शुड गो मोर इन द इवेंट्स, एंड देन इवेंचुअली Hmm. आप चेंज होते हो। ये वैसे चेंजेस हैं जो आपको खुद नहीं पता चलते, एंड यू यू जस्ट ग्रो, मतलब बहुत ही Yeah, that just come with the perfect environment and timing. एग्जैक्टली दिस इज आई थिंक कम्स विद द एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ आने के बाद मेरे को ऐसा, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं यूरोप घूम सकती हूँ, मतलब मैं दूसरे अकेले जा सकती हूँ अगर मेरे को कंपनी नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स इफ देयर इज अ कंपनी तो ऐसा नहीं है कि Right. आई विल से नो, बट Yeah. अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सेम ही एंजॉयमेंट मिलेगा इफ इवन इफ आई गो अलोन। बहुत Right. कुछ है यहाँ पे, बहुत सुंदर भी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो वाली बात होती है कि अब दुनिया बहुत बड़ी है और हमें बस पता नहीं है Uh-huh. बिकॉज हम कभी गए नहीं है, और एक पर्सपेक्टिव होता है लोगों Right. का सुन के। आई थिंक जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हो देर इज ऑलवेज अ डिफरेंट लेंस, आई थिंक। आप Mm-hmm. किसी और की Mm-hmm. बात सुन के दैट इज देयर लेंस। सो मैं तो सजेस्ट करूंगी लोगों को कि इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग एंड यू रियली वांट टू ग्रो, तो आप हाँ हो, शायद आप आपको कुछ मेहनत ना करना पड़े, आप अपने आप ही ग्रो कर जाओ। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। Right, right. And how should students prepare themselves, like, you know, primarily academically, financially, and mentally for an MBA in the UK? मेंटली तो दिस इज द थिंग, मतलब इट्स जस्ट ऑन यू। आपको फर्स्ट हाउ यू हैव टू डिसाइड डू यू रियली वांट इट और नॉट, बिकॉज Yes. आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स जो मुझे बोलते हैं कि अगर कोई मुझे फ्री में भी बोलेगा देगा तो मैं नहीं जाऊंगी। सो इट्स जस्ट Yeah. पर्सपेक्टिव तो एक होता ही है, प्रेफरेंस रहती है लोगों की कि बट Hmm. येस, मतलब अगर आपको पहले तो अपने आप को डिसाइड ही करना पड़ेगा मेंटली, इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम योर सेल्फ। तो Hmm. अगर आपको रियली लगता है कि यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू चेंज, आपको कुछ नया सीखना है, आपको कुछ अलग करना है, आपको एक नया इवन जॉब भी करनी है, तो अगर आपको कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इन्वायरमेंट देखना है, Hmm. डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडी कल्चर देखना है, या कुछ भी नया ऐसा करना है, आई थिंक एक बार तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी लेनी चाहिए, क्योंकि Malaysia. वापस जाने का ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा, बट आने का ऑप्शन आपको हमेशा मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो ये एक Right, चीज़ right. है कि ठीक है, नहीं पसंद आया, नहीं हो रहा है, नहीं वर्कआउट किया, दैट इज ऑलवेज बी देयर, यू ऑलवेज हैव अ चांस टू गो बैक। तो और Right, very well said. अगर आप ऐसे एज में हो जहाँ पे आप ये चीज़ें कर सकते हो, उस तरीके की रिस्क ले सकते हो, या फिर आपके जैसे जो ये एज होती है 20 to 30, Hmm. एक बार आप एक Hmm. एज सेट में चले जाते हो जहाँ भी हैव अ फैमिली, तो उस टाइम पे आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो अभी आपके पास टाइम है, डू इट, एक्सपेरिमेंट, लर्न, ग्रो, ये सब करने का आपके पास अभी ही टाइम है। सो ये चीज़ आई वुड से इफ यू रियली वांट टू डू इट, तो आपको इस सेट में मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स फाइनेंस इज अदर थिंग, लोन तो लेना पड़ता है until unless you come from a very rich background, लोन तो स्पेशली Yeah, एमबीए that's तो आई थिंक basic. इंडिया और आउटसाइड एमबीए हर जगह एक्सपेंसिव है। इंडिया में भी आप दूसरे Right. अगर कोर्सेज करोगे तो मे बी आपका वो
विद इन 10 lakhs में हो जाए शायद आज के डेट में, आई एम नॉट श्योर. बट MBAs, हम्म आई थिंक आई हर्ड रिसेंटली कि आई थिंक इट्स अगेन इंक्रीज्ड. IIM स्पेशली अगर आप अच्छे ही यूनिवर्सिटी से करना चाहोगे, कॉलेजेस से, तो IIM के भी आई थिंक मुझे राइट लगता है 25 से इंक्रीज हो चुके हैं अब 5 जाके. तो बाहर भी ऐसी ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाओगे तो ऑफ कोर्स उनके और भी ज़्यादा हैं, बट या आपको लोन तो इंडिया में भी लेना पड़ेगा, लोन आपको बाहर भी लेना पड़ेगा, स्पेशली फॉर MBAs. एंड मैंने अभी तक जितना भी सुना है मैक्सिमम लोगों ने लोन तो लिया ही है. सो दैट इज़ वन राइट थिंग. आपको बजट देख के भी आप यूनिवर्सिटी, बिकॉज हर तरीके की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो जिनकी फीस शायद उतनी ज़्यादा नहीं है, एंड यूल गेट स्कॉलरशिप एज वेल अकॉर्डिंग टू योर अकेडमिक्स. या फिर नॉर्मल अगर आप ओवरसीज स्टूडेंट हो तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, एंड इंडिया में भी बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स वगैरह हैं. सो यू हैव टू मतलब लुक फॉर दैट. तो ऐसे भी आप अपना बजट पहले से हाँ जी प्रिपेयर कर सकते हो. एंड मैं तो ये बोलूँ, सजेस्ट करूँगी, वन मोर थिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, लास्ट मोमेंट पे डोंट स्टार्ट. जैसे मेरा सितंबर इनटेक था, जनवरी इनटेक था, तो मैंने नवंबर के स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था. सो आई ओनली हैड 2 months. सो मेरा बहुत फटाफट था, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था किसी चीज़ के लिए. एवरीथिंग वाज ऑन माई हेड, लाइक एवरीथिंग वाज ऑन द डेडलाइन. सब कुछ मैंने बिल्कुल डेडलाइन के ओके एकदम लास्ट डे किया था. सो एक्सपेंस को लेके आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपने लास्ट मोमेंट पे स्टार्ट किया है, बिकॉज देयर आर अ अप्लाई लॉट ऑफ किया तो रूल्स ऑल्सो कि अकाउंट में इतने पैसे इतने टाइम तक होने चाहिए, दोज थिंग्स. सो चाहिए आई वुड से कि हाँ, अपना ये सारी चीज़ें भी देख लो एक्सपेंस को लेके. और जो भी लोन वगैरह लेना है नहीं लेना है, जो भी चीज़ें हैं वो. very well said, and specifically the part you said that how one needs to be prepared mentally. I Yeah. respect your words. Okay, so moving, lastly but not the least, would you recommend grad out to other students and why? डेफिनेटली. मतलब सो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली ग्रेड आउट के पास आई थी. आई हैव अगेन, बिकॉज मैंने बोला कि मैं बहुत रिसर्च करती हूँ. मेरे को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता है डायरेक्टली किसी पे. तो क्योंकि मैं बैंगलोर में थी, मैं वहीं पे मेरी फैमिली है और मैं वहाँ जॉब करती थी, तो मैंने नॉर्मली जैसे आप करते हो गूगल पे गए एंड बेस्ट देखा कंसल्टेंट, स्टडी कंसल्टेंट्स, अब्रॉड या कंसल्टेंट्स. मैंने चेक किया और मुझे बहुत सारे मिले. ठीक है, मैंने आई डोंट नो कि प्रोसेस मुझे याद नहीं आ रहा है, लाइक यू हैव टू गिव योर नंबर और समथिंग लाइक दैट, बट दे हैड माय नंबर और फिर उन्होंने मुझे खुद ही कांटेक्ट कर लिया. करना एक बार आपने वहाँ पे चेक किया एंड देन नाउ स्टार्ट कॉलिंग यू एंड स्टार्ट व्हाट्सएप मैसेजिंग यू एंड ऑल. तो वो सारी चीज़ें शुरू हो गई थी मुझे. तो I think there was 5 or 6 were there, and the way they have responded me, that's how I selected grad out. कि बोल रहे हैं कि हाँ हम मीटिंग फिक्स कर देंगे, बट मीटिंग फिक्स नहीं हो रही है. या फिर द वे दे वर, मुझे उनका उतना रिसोर्सफुल, बाकियों का उतना शायद नहीं लगा लगा नहीं था. कि मुझे लगा कि नहीं, देयर आर सम लैकिंग इन द लूप डेटा दे होल्स आर या गिविंग मी और द इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन मी. जैसे यूनिवर्सिटी राइट की भी मैंने पूछा था कि जनवरी इनटेक में मैंने ऑफ कोर्स मैंने अपनी एक लिस्ट बना रखी थी. तो आई वाज चेकिंग कि ये क्या क्या बता रहे हैं, क्या इन्होंने कुछ नया बताया है मेरे से. तो मुझे ग्रेड आउट की लिस्ट और जितनी भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी वो मुझसे भी अलग थी और जो उन लोगों ने दी थी उससे भी अलग थी. सो मुझे लगा कि ओके, दे हैव मोर देन मी एंड द अदर पीपल. तो दैट्स हाउ आई हैव सेलेक्टेड ग्रेड आउट. तो मुझे और वो मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था, थैंकफुली. क्योंकि मैं मेरे पास वो भी रिस्क नहीं था कि मैं गलत चूज कर लूँ एंड देन आई. 2 ही महीने थे, उसी में सब करना था, कॉलेज सेलेक्ट करना था, राइट एप्लीकेशन था, लोन लेना था. लाइक मैंने सब कुछ किया है. ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट कर रखी थी एंड देन फिर मैंने लास्ट के 2 महीने में किया, नहीं. तो वो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी और के साथ करती या मैं अकेले करती तो शायद नहीं हो पाता टाइम पे. बट मैंने सही कंसल्टेंसी चुनी एंड देन आई थिंक मेरा तो अच्छा हो गया, yeah, बहुत you अच्छे made से. it in the right time, या exactly. Okay, so moving to the end, the Q&A round finishes here. And Sweta, thank you so much for sharing your journey with us today. Your insights are legit, incredibly valuable for all the students watching who are still figuring out their next steps to study abroad. To everyone watching, if Sweta's story inspired you and you are dreaming of studying abroad,
don't hesitate. Our team at GradOut is here to support you with free counseling, admission help, visa guidance, scholarships, loans, and whatnot. So just fill out our free consultation form using the link in the description, and let's start planning your global journey just like Sweta's. So thank you again, Shweta, and all the best for your MBA journey at the University of Liverpool. Until next time, take care, and we'll see you again. Thank you.